اس لیے ہمیں اپنے خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دینا ہے، تو اس کے اوپر پوری نیت کے ساتھ دینا ہے اور اپنے دل کے اندر یہ بات مانے کہ میں نے آج خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر جانا ہے۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے بک دیکھیں گے، پہلا سیموئیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے سیموئیل، پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، حنا نے خود دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سین خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو میرے خدا کی مانے تو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور امان کا تولنے والا ہے۔ خداوند کا کلام پڑھنا اور سننا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ حنا یہاں پر دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا بول منہ سے نہ نکالو، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے۔ حنا جو ہے یہ سیموئیل نبی کی ماں ہے، اور سیموئیل کے باپ کا نام الکانا تھا۔ اس کی دو بیویاں تھی، ایک بیوی جو تھی وہ حنا تھی اور دوسری جو تھی وہ پنینا تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ دوسری جو اس کی بیوی تھی اس کے ہاں اولاد تھی، لیکن حنا کے پاس خدا نے اولاد جیسی نعمت نہیں رکھی تھی۔ اس لیے کیا تھا کہ اس کے اوپر تانا زنی ہوتی تھی، اس کو لوگ لان تان کرتے تھے، اس کو باتیں کرتے تھے اور وہ رنجیدہ ہوتی تھی۔ جبکہ الکانا جو تھا وہ اپنی بیوی حنا سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو ہر جو اپنے حصے میں سے چیزیں واپس کرتا تھا، جو اس کا حصہ آتا تھا اس کو زیادہ دیتا تھا، تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی رنجش نہ رہے، اس کے دل کے اندر کوئی غم نہ ہو کہ وہ اس کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو باتیں ضرور کرتے تھے، لوگوں کی باتیں جو تھی اس کو بہت زیادہ تیز کرتی تھی، لوگوں کی باتیں جو تھی اس کے اندر جو ہے اس کو دل کو ہلا دیتی تھی، لیکن وہ خاموش رہتی تھی۔ یہ تو اس کا خدا جو ہے وہ بہتر طور پر چاہتا تھا۔ اور ایک دن وہ کیا ہے کہ جب وہ خداوند کی حضوری میں جاتی ہے تو اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر خداوند کی حضوری میں دعا کرتی ہے، سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل کو انڈیل دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے خدا تو میرا غم جانتا ہے۔ پھر یہ بھی کہتی ہے کہ اے خداوند تم نے میرا سینگ جو ہے وہ بلند کیا ہے، کہتی ہے کہ خداوند تم نے میرا سینگ بلند کیا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ خداوند میں مگن ہے۔ اور وہ پھر کہتی ہے کہ اے اونچا بول بولنے والوں، اونچا بول نہ بولو۔ بڑے بول بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ خدا کو ناپسند آتے ہیں، اور وہ خداوند کی حضوری میں بھی اسی بات کو رکھے ہوئے ہے اور کہتی ہے کہ میری چٹان جو ہے وہ میرے خداوند ہے اور میرا غرور جو ہے وہ میرا خدا ہے اور اس کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں کیا کہتی ہوں، کہتی ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ بڑا بول بولنے والے اپنے منہ میں سے بڑا بول نہ نکال، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے۔ آج ہم کس بات کو سمجھیں گے کہ خداوند خدائے علیم ہے۔ خداوند خدائے علیم حنا نے کیوں کہا؟ حنا کو خدائے علیم کے بارے میں سمجھ تھی، وہ لوگوں کی باتیں سن کر خاموش کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی ساری باتیں اپنے خدائے علیم پر چھوڑتی تھی۔ خدائے علیم کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا۔ خدائے علیم کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔ وہ ساری باتیں ہماری جو ہے وہ سمجھتا ہے، وہ ہماری ہر بات کے اوپر جو ہے وہ دھیان کرتا ہے۔ انسان بے شک جتنا مرضی سوچتا ہے کہ اس کی بات چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کی بات خدا کے سامنے سے نہیں چھپی ہوئی، اور حنا اس بات کو جانتی تھی۔ اسی لیے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ خدائے علیم ہے، کوئی بڑا بول نہ بولو، کیونکہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی جو ہے وہ الکانا کی دوسری بیوی، اس کے بہت ساری اولاد تھی، اور وہ اپنی اولاد ہونے کے سبب سے اس کو بہت اس بات کا فخر تھا، اس کے اندر اس بات کا گھمنڈ تھا، اور وہ جو ہے وہ حنا کو تانے دیتی تھی، حنا کو کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، بچوں کے ساتھ اس کو جو ہے
मोहब्बत से बच्चों को देखती थी, लेकिन वो उसको और तड़पाती थी और उसको जो है वो ताने देती थी। और हन्ना इस बात को जो थी वो खामोशी से सह लेती थी, किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज था, एक बहुत बड़ी तालीम थी। और वो तालीम क्या थी कि जिस खुदा को वो मानती है वो खुदा कौन है? खुदाए अलीम है। उसका खुदा खुदाए अलीम है। इसलिए वो कहती है अपनी सोतन को और अपने लोगों को जो उसको तानाजनी करते हैं उनसे कहती है कि बड़ा बोल मत मुंह से निकालो, बड़ी बड़ी बातें मत कहो अपने खुदा लोगों को मेरे लिए, क्योंकि मेरा खुदा कौन है? खुदाए अलीम है। वो सब कुछ जानता है, उसके पास से कोई चीज जो वो छुपी हुई नहीं है, उसके सामने से हर चीज बेपर्दा है। और हन्ना ने जब ये दुआ की वो रोने लगी, जोर जोर से रो रही है, अपने आंखों में से उसके आंसू बह रहे हैं और उसके होंठ जो है वो कपकपाते हैं, थरथराते हैं। और जो हैकल का जो काहिन है, जो पास्टर है, एली जो है वो उसको देखता है ना जब, तो वो क्या देखता है कि इतनी देर से ये रोती चली जा रही है, आंसुओं से भीगी हुई है ये हन्ना जो है, और दुआ करती जा रही है, इसको कोई होश नहीं है। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो हमें इधर उधर नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने खुदावन में मगन होना है, हमें अपने खुदावन में मसरूर हो जाना है, हमें सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हमारे ऊपर नजर किए हुए है। और हन्ना भी अपना आप जो है वो खुदावन के सामने उम्मीद देती है, कहती है क्या है खुदावन, तू मेरी चट्टान है, खुदावन तू मेरा मौकिम किला है, खुदावन तू मेरा सींग बुलंद करने वाला है। कहती है कि खुदावन मुझे बहुत सारे ताने जनी होती है, मेरे ऊपर लोग जो है वो उंगलियां उठाते हैं, ये बातें जो है वो खुदावन से शेयर करती है और कहती है क्या है खुदावन जो है मेरी सुन ले और मेरी जो है वो पस्तहाली पर नजर कर। खुदा जो है वो मेहरबान है, वो हमेशा गजबनाक नहीं होता। उसने अपनी बेटी हन्ना की जो है वो दुआ के ऊपर अपना कान लगाया, और जब वो रो रही है, रो रो कर दुआ कर रही है, और उसके रो रो कर दुआ करने से जो है वो एली काहिन जब वो परेशान हो जाता है और उसको कहता है कि शायद ये नशे के अंदर है, इसने कोई मह पी हुई है और उस मह के अंदर ये मतवाली है, और उसके अंदर नशे के अंदर मतवाली होकर जो है ये इस तरह मसरूर होकर जो है ये दुआ कर रही है। और जब वो उसको जो है वो इस बात का एहसास दिलाता है, लेकिन क्या है, और वो अपने खुदा के साथ मसरूर है, दुआ में लगी हुई है, क्योंकि अंदर से टूटी हुई है। जब हम टूट जाते हैं और दुआ करते हैं अपने खुदावन की हजूरी में, उसको पुकारते हैं, तो खुदा हमारी सुनता है। और हन्ना की भी खुदा ने उसकी सुन ली, उसकी गिलाजारी को खुदा ने सुना, उसकी दुआ को सुना, उसकी दुआ के ऊपर अपना कान लगाया। जब उसने इतनी बात कही है कि खुदाए खुदाए अलीम है, तो खुदावन ने क्या किया? अपने बंदा एली के थ्रू जो है उससे हम कलाम हुआ, उससे कहा कि ऐ बेटी जा, तेरी खुदा ने क्या है? दुआ सुन ली है। और ऐसा ही होता है, खुदा उसकी दुआ को सुनता है और उसको एक खूबसूरत बेटा अता करता है। और जब उसको वो बेटा मिलता है तो वो क्या करती है? वो बड़े बोल नहीं बोलती है, वो उसकी शुक्रगुजारी करती है कि उसको खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है। लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं, जो बड़े बोल बोल रहे थे उनके जो है वो मुंह बंद हो गए हैं। और अब क्या हो रहा है कि वो खुदावन की हजूरी में अपने बेटे को लेकर आती है और उसको जो है वो खुदावन की नजर कर देती है। ये खुदा को उसने क्या कर दिया? अपना बेटा नजर कर दिया है कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, मुझे औलाद वाली बना दिया है। मेरे दुश्मनों के जो है वो मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि खुदाए अलीम है, उसने मेरी सुनी, मेरे अंदर के हाल को जाना, उसने मेरे दुख को पहचान लिया। कहती कि मैं दुनिया के सामने नहीं अपना हाल सुना सकती थी, मैं जितना रोऊंगी वो मुझ पर और ज्यादा जो है बातें करेंगे। इसलिए वो कहती है मेरा तो खुदाए अलीम है, वो मेरी सारी बातें जानता है। इसलिए वो कहती कि मैं अपने दिल की बात जो है वो अपने खुदा से कहूंगी। और वो कहती है कि खुदावन तू मेरा खुदाए अलीम है। खुदा जो है वो हमारे अंदर की बातों को जान लेता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी आंखें देख ही रही होती हैं, उनके ऊपर भी खुदा जो है वो नजर किए हुए होता है। क्यों? जो खुदा ने क्या किया है? हमारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद ली है। वो हर पल हम उसकी नजरें पनाह के सामने रहते हैं, हमारी तमाम तरह हरकत और सकनात जो है वो उसके सामने रहती हैं। खुदावन हमारा जो है वो बुजुर्गी से भरा हुआ खुदावन है, और वो कहता है कि मेरे ऊपर जो है वो
नजर हम पर है, हमारे वो दिल की बातों को भी जान लेता है। दाऊद जो है वो यही कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे जान, ऐ खुदा मुझे पहचान, तू मुझे ऐ खुदा जानेगा पहचानेगा, तो ऐ खुदा मैं सरफराज किया जाऊंगा। तो खुदावंद ने क्या किया, उसको जांच लिया। उसको खुदावंद की जब पहचान हो जाती है, जब उसको खुदा का कलाम समझ में आ जाता है, जब वो खुदा से जो है वो कलाम करना शुरू करता है, उसकी हमदो सना करता है, उसकी हजूरी में अपने आप को लाता है, तो क्या होता है कि खुदावंद से वो फिर क्या कहता है, क्या है खुदावंद तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे पहचान लिया, तू मेरे रास्तों की छानबीन करता है, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम उसकी जिंदगी के अंदर आ गया है और खुदावंद उसको ब्लेस कर रहा है। और वो कहता है क्या है खुदावंद तूने मेरे रास्तों की छानबीन कर ली है। कहता है क्या है खुदावंद तू मुझे मेरी माँ के बातनी से जानता है। इस हद तक वो खुदा को समझ गया है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि खुदाए अलीम कौन है। खुदावंद वो है जो सब कुछ जानता है, वो दिल के ख्यालों इरादों को दूरी से पहचान लेता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कलाम में ऐसे बहुत सारे वाकयात है जिसमें खुदाए अलीम ने अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर किया। हननिया और सफीरा जो है वो खुदा को खुदाए अलीम के नाम से नहीं जान पा रहे थे, उनको समझ नहीं थी, वो समझते थे कि खुदा हमें नहीं जानता, वो जाहिर चीजों को देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि खुदा जो है वो हमारे अंदर की बातों को जानता है, हमारे दिल के ख्याल समझता है। खुदा जो चीजें हम सोचते हैं उनको पहले से पहचान लेता है, क्योंकि खुदा ने हमें तख्लीक किया है, खुदा कैसे भी हमें जान सकता था। लेकिन हननिया और सफीरा जो थे वो इस बात को नहीं समझते थे, और उन्होंने क्या किया, पतरस के पास जाकर, खुदा के नबी के रसूल के पास जाकर और क्या करते हैं, अपना हदिया देने लगे हैं। देखिए हन्ना ने क्या किया है कि अपना हदिया, अपनी शुक्रगुजारी, अपना बेटा जो खुदा ने उसको दिया, अपना पहला फल जो है वो खुदावंद की हजूरी में बड़ी खुशी के साथ जो है उसको दे रही है। और वो बेटा उसका क्या है, एक बड़ा नबी बना है, और खुदा ने भी उसके इस जो है कुर्बानी को, उसके इस हदिये को, उसके इस शुक्रगुजारी को कबूल किया, और उसको बड़ा अजर मिला कि इस्राएल के अंदर सैमुअल इतना बड़ा नबी पैदा हुआ। और लेकिन यहाँ पर हननिया और सफीरा क्या कर रहे हैं, हननिया और सफीरा ने क्या किया है कि खुदा के बंदा के पास जाकर कहते हैं कि जो प्लॉट जो हम लोगों ने बेचा था उसकी रकम जो है उन्होंने बचा ली, घर के अंदर छुपा के रख ली है आधी, और जाकर जो है वो खुदा के खादम के पास आधी रकम देने जब जाते हैं तो खुदा के खादम ने उससे क्या पूछा, कहा कि हननिया क्या इतनी ही का ही प्लॉट जो है वो सेल हुआ है। तो वो क्या कहता है कि आप खुदावंद के अपने खुदा के कदम से कहता है कि हाँ इतने का ही प्लॉट जो है वो सेल हुआ है। वो इस बात को नहीं जानता कि खुदाए अलीम जो है वो उसकी तमाम तर बातों को समझ रहा है। वो खुदा जो है वो जानता है कि उसने अपनी आधी रकम अपने घर के अंदर अपनी बीवी को दी हुई है और उसने छुपा के रख ली हुई है। बेशक पतरस को नहीं समझ आ रही थी। पतरस जो है वो एक बशरियत की हालत के अंदर है, एक इंसान है, लेकिन उसने क्या किया, जब उसके ऊपर भी पाक रूह आया है तो पाक रूह की हदायत के मुताबिक वो क्या कह रहा है, कहता है हननिया सफीरा क्या इतने का ही प्लॉट जो है वो सेल हुआ है। और हननिया क्या कहता है इतने का ही हुआ है, लेकिन खुदा का पाक रूह उसको कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और लिहाजा क्या है, खुदा के पाक रूह ने हननिया की अंदर की बात को, जो उसके नॉलेज को जो है वो समझ लिया और पतरस के ऊपर जो अयां कर दिया। और क्या कहता है, खुदा का खादम कहता है, होली स्पिरिट के थ्रू कहता है, होली स्पिरिट उसके अंदर होता है, और होली स्पिरिट से खुदा उसको कहता है कि ये क्या कर रहा है, पाक रूह से झूठ बोल रहा है, क्योंकि पतरस के अंदर खुदा का पाक रूह है। और हननिया जो है वो सब पाक रूह के सामने क्या कह रहा है कि हाँ इतने का ही प्लॉट सेल हुआ है। वो झूठ बोलते हैं और उसकी क्या उसको मिलती है, सजा मिलती है, क्योंकि उसको खुदाए अलीम के बारे में नहीं पता। वो नहीं जानता था कि खुदा जो है वो मेरी तमाम तर बातों को समझता है। खुदा जो है मैं जितना मर्जी अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक मैं पतरस से बात छुपा सकता हूँ, उस रकम को छुपा सकता हूँ, लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकता। हम अपनी बहुत सारी बातों को जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जो कोई भी अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करेगा वो छुप नहीं सकता है, बल्कि अपनी बातें हमें क्या करनी है, खुदा के सामने खोल कर बयान करनी है, अपना पूरा हाल खुदा को बयान करना है, और खुदा के सामने गिड़गिड़ाए, खुदा के सामने रोए और उसको कहे खुदा तू मेरी सुन ले,
और खुदा से कहें, बल्कि कहें कि खुदा तो मेरे मांगने से पहले जानता है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमारी तमाम तर जरूरतों को अपने सामने रखता है, क्योंकि वो क्या है, वो खुदाए अलीम है। यहाँ पर हनन्याह ने जब वो झूठ बोला है तो क्या हुआ है कि पाक रूह के सामने उसने जो है वो गुनाह किया है, और उसकी गुनाह की सजा उसको क्या मिली है, मौत मिलती है। क्योंकि जब हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते, अपनी बातें खुदा पर नहीं छोड़ते हैं, अपनी फिक्रें, अपनी सारी टेंशन जो है वो खुदा को नहीं देते और अपनी ही टेंशन के अंदर लगे रहते हैं, अपने जोर में लगे रहते हैं, तो क्या करते हैं, कता खाते हैं। और हनन्याह ने भी ऐसा किया। उसने जो है वो रुपया पैसा लालच के लिए छुपाने की कोशिश की, लालच में, ताकि वो मेरे काम आएगा। लेकिन क्या हुआ है कि उसने जो खुदा के हुजूरी में मुकर्रर कर दिया था उसको नहीं दिया। लेकिन हन्ना ने क्या किया है, हन्ना ने अपने बेटे को जो है एक बार जब खुदा के हुजूरी में दे दिया तो उसको ये नहीं करती थी कि अपने घर वापस ले आओ, उसके बार बार जो उसके पीछे जाती, बल्कि साल में एक बार सिर्फ जाती थी, उसकी बर्थडे पे जाती थी और उसको जुबा देती थी और अच्छी ड्रेसिंग देती थी, और उसको हमेशा यही बात जो है वो सिखा कर आती थी हैकल के अंदर कि ऐ मेरे बेटे, तूने क्या करना है, खुदा के काम को और खुदा के नाम को जलाल देना है। और वो एक छोटा सा नन्हा सा काहिन, देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है जिसके खेलने के दिन थे, और एली काहिन भी क्या करता है, उसके एक छोटा सा जुबा बनाकर एक छोटा सा काहिन बना देता है, छोटा सा पास्टर, एक बच्चा सा पास्टर। और वो जब उस हैकल के अंदर घूमता फिरता था और लोग उससे खुश होते थे उसकी छोटी छोटी बातों से, वो अपनी माँ के इर्द गिर्द नहीं घूमता था, बल्कि क्या करता था, वो हर पल खुदा के कहमा इज्तिमा के इर्द गिर्द रहता था। क्योंकि उसको क्या चीज सिखाई गई है कि पूरी की पूरा जो है वो उसने अपने आप को खुदा को दे दिया है। उसकी माँ जब भी आती है वो यही कहती है, ऐ मेरे बेटे, तूने क्या करना है, अपने पूरे बदन से खुदा उनके नाम को जला देना है, कोई कता नहीं करनी है। उसकी माँ उसको बार बार बहन भाइयों की तरफ नहीं लाती थी, क्योंकि खुदावन ने सैमुअल के बाद जो है खुदावन ने जो है वो हन्ना को औलाद जैसी और नेमत दी हुई थी, और उसके पास और बेटियां और बेटे थे। लेकिन वो फिर भी सैमुअल के पास साल में एक बार ही जाती थी और उसको अच्छी अच्छी बातें सिखा कर लाती थी। उसको ये नहीं कहती थी कि तुम्हारे बहन भाई हैं तो वापिस आ जाओ, ये कर लो। वो कभी भी इस बात का लालच नहीं करती थी। उसने एक खूबसूरत अपनी औलाद जो है वो अपनी शहजोरी का पहला फल जो था वो खुदा को दिया हुआ था, क्योंकि वो जो है उसने खुदा से, खुदाई अलीम से बरकत को पाया हुआ था, और उस बरकत को जानते हुए वो अपने हाथी और अपनी उस शुक्रगुजारी को जो खुदा के हुजूरी में उसने ठहरा कर दे दिया था, उसके अंदर लालच नहीं कर रही है, उसके अंदर हिरस नहीं कर रही है, उसके अंदर जो है वो उसकी दोबारा से कोई ममता जो है ना, वो बेशक माँ थी, वो अपनी माँ जो है वो उसके अपने बेटे को देखती थी और खुश होती थी, लेकिन एक बात उसके ज़हन में थी, वो जानती थी कि मेरा खुदा खुदाए अलीम है, वो ही इस बच्चे की हिफाजत और निगहबानी करने वाला है। और हैकल के अंदर तो वो खुदा की बारगाह में रहता था, कहीं जो कभी साल में एक बार जाता था उस जगह पर, और वो छोटा सा बच्चा हर वक्त खुदा की उस जगह पर हजूरी में रहता था। देखिए एक बड़े कायम को साल में एक बार जाना पड़ता, और वो बच्चा वहीं पे सोता, वहीं पे खेलता, हर वक्त खुदा के कहमा जितमा के अंदर ऐद के संदूक के सामने रहता था, क्योंकि उसको खुदाए अलीम ने क्या किया हुआ था, चुना हुआ था। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, झूठ बोलकर खुदाए अलीम को ना जाना। खुदाए अलीम जो है वो हमारे ऊपर जब हम अपनी बातों का आश्कारा करता है, हमारे बार बार हमें समझाता है, बार बार हमें समझाता है, सिखाता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं और खुदाए अलीम को समझते नहीं और बड़े नुकसान की तरफ जाते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े नुकसान ले लेते हैं। और लेकिन अपनी तमाम तर फिक्रों को, अपनी तमाम तर मुश्किलातों को, परेशानियों को जो है वो खुदाए अलीम पर नहीं फेंकते हैं। और सफीरा ने भी फिर दोबारा जब पतरस ने उससे सफीरा की उसकी बीवी से पूछा तो उसने भी यही कहा कि इतने का ही सेल हुआ है, क्योंकि तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मंसूबा बनाया हुआ है, दोनों ने मिलकर प्लान किया हुआ है झूठ बोलने के बारे में। दोनों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि खुदाए अलीम कौन है, उनकी बातों को वो समझ रहा है, खुदाए अलीम उनको देख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो चीज सीखी हुई है, लालच सीखा हुआ था, उसी के मुताबिक वो चल रहे थे। और देखें कि उन्होंने क्या किया, बड़ी सजा को पाया, और बड़ी सजा उनके पास क्या थी कि उनको मौत आई और उनकी जिंदगी जो है वो तबाह हो गई, खत्म होगी, और वो लालच उनका मायका वही रह गया। हमें कभी भी
खुदा की हजूरी में आकर कोई बात छुपानी नहीं है, बल्कि अपने खुदा के सामने बेपर्दा कर देनी है, खुदा के सामने खोल देनी है। जैसे खुदा ने उस सामरी औरत की तमाम बातें खोल के उसके सामने रख दी। हालांकि वो पानी भरने आई है, खुदा उसके सामने बैठा हुआ है, खुदा जानता है कि इस औरत के अंदर क्या है। वो खुदा से तो बातें करती है। खुदा ने कहा कि मुझे पानी पिला, और उसने क्या कहा, कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। वो अपनी बातें, मुआशरे की बातें उसको बताने वाली है। वो उसके साथ मुआशरे की बातें डिस्कस कर रही है, क्योंकि वो एक बदकार औरत थी। वो जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत से शोर कर चुकी हुई थी, और लोग भी उसको इतना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो छुप कर रहती थी। और जब वो पानी भरने आती थी, देखती थी कि जैसे लोग जो है वो औरतें पानी भर के चली गई हैं, फ्री हो गई हैं, तो देखती कि अब कोई भी नहीं है, तो फिर वो पानी भरने आती। और खुदा जो है उसकी नजर उस औरत पर थी, उस सामरी औरत पर थी। खुदा की नजर से कोई चीज छुपी नहीं है, बल्कि उसके सामने हर चीज बेपर्दा है। चाहे वो जमीन की हो, चाहे वो आसमान की हो, चाहे पाताल में भी आप चले जाएं, तो भी हर चीज उसके सामने अया है। उस सामरी औरत ने क्या किया है? सामरी औरत क्या कहती है? कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है सामरी से, क्योंकि यहूदी सामरियों से नफरत करते थे। तो यीशु ने इससे क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुझसे जो पानी मांग रहा तू नहीं देती, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या करता? जिंदगी का पानी देता। जिंदगी का पानी खुदाए अलीम के पास है। खुदाए अलीम जो है वो हमारी जो है वो तमाम तर फिक्रें करता है, और वो हमारी परेशानियों को समझता है। वो उस औरत की परेशानी को समझ रहा है, इसलिए यीशु वहां पर ठहर गया। वहां पर वो ठहर गया, रुक गया, उसकी जिंदगी तब्दील करने के लिए। वो नहीं जानती थी कि खुदा मेरी बातें अंदर की जानता है। वो ऊपर वाली अपनी बातों से जो है वो खुदा उनको समझाती है, कहती है कि तू मुझे जिंदगी का पानी देता है, तू मुझे जिंदगी का पानी दे रही है। कह रहा है कि इस कुएं में से पानी निकालने के लिए तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, लेकिन तू मुझसे जिंदगी की बातें करता है पानी की। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा? वो कहती है कि मुझे क्या कर जिंदगी का पानी। वो जॉब करती है, वो समझती है कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी क्या करती है, कहती है कि तू ऐसा करके तू मुझे जिंदगी का पानी चल पिला दे। तो यीशु ने उससे एक और सवाल करके यीशु ने कहा कि जा और अपने शोहर को लेकर। और वो परेशान हो जाती है, वो कहती है कि मेरा शोहर जो है वो नहीं है। तो अब देखिए कि उस औरत की अंदर की बात, क्योंकि वो खुदाए अलीम को नहीं जानती थी, इसलिए अब यीशु खुदाए अलीम के तौर पर उसके ऊपर जाहिर होने वाला है। और वो क्या कहता है? हाँ मैं जानता हूँ कि तू क्या कर चुकी हुई है, 5 शोहर कर चुकी है, और जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं। जब उसने ये बात सुनी कि मैं तो इस शख्स को जानती नहीं हूँ, ये शख्स जो है वो मेरी बातें क्या बता रहा है, वो कहती है कि इसने तो मेरे अंदर की बात बता दी है। मेरे अंदर जो चीजें चल रही थी, जो चीजें मैं छुपा रही थी, ये इसने क्या कर दी है? मुझ पर खोल दी है। वो उसको जान गई, कहती है वो समझ गई कि ये वो क्रिस्तस है, ये वो खुदा है, ये वो अलीम खुदाए खुदा है जो सैमुअल की माँ के ऊपर जाहिर हुआ था। खुदाए अलीम हनन्याह को जिसने जाना था, और हनन्याह ने जिस खुदा को जाना था, वो कहती कि ये तो वो खुदा है, ये वो क्रिस्तस है। और वो क्या करती है? भागकर वहां पर अपने गांव में जाती है, और सामरिया के अंदर जाकर लोगों को लेकर आती है, रूहों को जीतने का वसीला बन जाती है। वो अपनी बातें जो है जो छुपा रही थी, खुदा ने उसको क्या कर दिया? उसके सामने खोल के रख दिया। और फिर वो शर्मिंदा नहीं हुई है, वो परेशान नहीं हुई है, वो क्या कर रही है? उसको खुदाए अलीम की जो है वो मनादी करने के लिए, उसकी बिशारत देने के लिए भाग खड़ी हुई है। जो खुदाए अलीम को जान जाता है वो कभी रुकता नहीं है, वो कभी भी ठहरता नहीं है। उस सामरी औरत ने क्या किया है? उस खुदाए अलीम को जब जान लिया तो वो भाग कर जाती है सामरिया के अंदर, और लोगों को लेकर आ जाती है। कहती है कि एक मुझे शख्स मिल गया, मुझे क्रिस्तस मिल गया, मुझे मेरा खुदा मिल गया, वो जिसने मेरे अंदर की बातें मुझे बता दी है, वो खुदाए अलीम, वो जिसने मुझे मेरा पूरा हाल सुना दिया है। आओ उसको आकर देखो और पहचानो कि खुदाए अलीम हमारे दरमियान में मौजूद है। और लोग उसकी जब बातें सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसके पीछे भागते हैं, और उसकी सुनकर वो जब कुएं पर आते हैं, और लोग जो हैं वो यीशु को देखते हैं, उससे तालीम लेते हैं, उससे बड़े बड़े मौजज़ात को पाते हैं, जो है वो बीमार चंगाई को पा लेते हैं। और क्या होता है कि लोग जो है
समझ लेते हैं तो कहते हैं, उस औरत से कहते हैं कि अब हमने तेरे कहने पर यकीन नहीं किया, बल्कि अब हमने क्या कर लिया है, अपने खुदा को देख लिया है और अपने खुदा की कुदरत को देख लिया है, खुदाए अलीम को देख लिया है, जो क्या कर रहा है, हमारे अंदर की बातें हमें बता रहा है। खुदाए अलीम हमारे दरमियान में जब आ जाता है तब हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदाए अलीम हमारा जो है वो हमारे अंदर की और हमारी सोचों की, जिन बातों के बारे में अभी हम सोच ही नहीं होते हैं, वो क्या कर देता है, उनको जान लेता है। जो चीजें अभी हमने प्लान नहीं की है, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम आइंदा दिनों में ये करेंगे, अपनी औलाद के बारे में सोच रहे होते हैं लोग, अभी वो छोटे ही होते हैं तो बड़े बड़े लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि खुदा ने उसकी लाइफ के अंदर क्या मंसूबे रखे हुए हैं, क्योंकि खुदा हमारे पहले से बनाने से पहले ही हमारी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा जो है वो बना लेता है, वो उसके प्लान में होता है। हम उससे मुनहरिफ नहीं हो सकते, हम उससे दाएं बाएं मुड़ नहीं सकते हैं। अगर मुड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि खुदा से हम छुप के कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जैसे यूना ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं खुदा से भाग जाऊंगा, लेकिन भाग नहीं सका। खुदा ने क्या किया, मछली के पेट में डाला और उसको घुमाकर उसी जगह पर लेकर आया जिस जगह पर उसको लाना था। खुदा से हम भाग नहीं सकते हैं। अगर दाऊद कहते हैं कि अगर मैं पाताल के अंदर जो है वो बिस्तर बचा लूं तो वहां पर भी तू मौजूद है। कहता है अगर मैं पर लगाकर आसमान पर चला जाता हूं तो खुदावन तू वहां पर भी है। खुदा तो हर जगह मौजूद है। हम खुदावन से भाग नहीं सकते हैं, खुदावन से हम कभी दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खुदावन जो है वो हर पल हमारे साथ है, क्योंकि वो क्या है, वो खुदाए अलीम है। वो क्या है, हमारा खुदाए अलीम है, जो हमारे दिल की बातों को समझता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। वो अपने पाक और अल्लाह ही खजाने से हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हमें देता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने खुदावन का शुक्र करें आज के कलाम के लिए, उस खुदाए अलीम के लिए जो हमारे दरमियान में उतरा है। वो हमारी बातों को जानता है। उस खुदाए अलीम का हम शुक्र करेंगे, उस खुदाए अलीम के सामने अपनी आँख को रखेंगे और उस खुदाए अलीम के सामने जो है अपनी गिरफ्तारी करें, दरख्वास्त करें, दुआ करें कि खुदाए अलीम, ऐ यहोवा यरी खुदा, खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदावन तू हमारा खुदा है। ऐ खुदावन तू हमें तमाम तर चीजें हमारे एकदम मांगने से पहले अता कर देता है। खुदा कहता है कि मेरा तालब कभी किसी चीज की, किसी नेमत का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि वो हमें नींद ही में दे देता है। वो अपने लोगों को नींद ही में दे देता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने हमारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। आए खुदावंद के खुदा, खुदावंद तू मेहरबान है, तू हमारी दुआओं के ऊपर अपना कान लगाए खुदावंद, तुम्हारी दुआओं को सुन ले आए खुदावंद। आए खुदावंद के खुदा, खुदावंद तो हमें बख्श दे, क्योंकि आए खुदावंद के खुदा, खुदावंद तुम्हारा बादशाह है, तूने हमारा फिदिया दे दिया है खुदावंद। हम तेरी तारीफ करते हैं। एक एक जिंदगी जो है वो खुदावंद की हजूरी में अपने हाथों को बुलंद करे और खुदावंद की हजूरी में अपने हाथों को बुलंद करे, अपनी जुबानों को खोले और पुकारे अपने खुदाए अलीम को, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा पोर्टर है। उसने हमें तख्लीक कर दिया है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने हमारे नथनों में अपने दम को फूंक दिया है और हमें जीती जान बना दिया है, क्योंकि हम उसके हाथों की कारीगरी है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं बगैर पाक रुल कुदस के, क्योंकि हम जो है वो नकम्मे हैं। वो हमारा खुदा है और हमारा अंदर उसका रूह बसा हुआ है और हम जो है अपने खुदावन के नाम को जला देने वाले हैं। आए खुदावंदों के खुदा, खुदावन इस जगह पर मौजूद न्यू यरूशलेम प्रेयर टावर के अंदर मौजूद कलीसिया के एक एक मेंबर को छू ले, इनकी बीमारियां इनसे दूर जाती रहे, इनकी प्रॉब्लम इनकी लाइफ से जाती रहे। आए खुदावंदों के खुदा, खुदावन इनको शिफा बख्श। आए खुदावंदों के खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर गहरे काम कर। आए खुदावंदों के खुदा प्रोस्पेरिटी इनकी लाइफ के अंदर आ जाए। आए खुदावन तेरा बेटा यीशु इनकी जिंदगियों के अंदर जलाल पा जाए। आए खुदावंदों के खुदा, खुदावन तेरा नाम इनकी जिंदगी के अंदर हो, क्योंकि तू मुबारक खुदा, खुदावंद है। बजुर्गी के खुदा आज का कलाम इनके अंदर चढ़ पकड़े
آج کے کلام کے وسیلہ